Good afternoon, dear students and other viewers. We have come here today again with the idea of discussing on entrepreneurship and rural development. I have with me Dr. S.S. Best and Dr. Pradeep Kumar. They are also going to participate in this discussion. But before we start the discussion on our topic of entrepreneurship and rural development, my request is that the students and even others should take adequate interest in the sessions, in the sense that they should participate, they should ask questions through telephone or by fax, so that it becomes a very interactive session, a challenging session for us, as well as a gainful session for people who are sitting on the other side, and we have a sense of satisfaction after going through this session. Today we would continue with what we had left last time. We were dealing with domains of rural entrepreneurship. We could not cover because due to paucity of time, we have much more to cover in that. Regarding that aspect. So I would request Dr. Best to let us know what more we can deal in this area. Then once we finish that, we would like to discuss on how to go about setting up a rural enterprise. How do we plan? How do we think of planning? What all things do we require? What kind of homework do we need to do before we go ahead with setting up an enterprise? So, to begin with, let us be clear with the domains of entrepreneurship. What are the opportunities available for us? Then, according to the opportunities, we can think of tailoring our project, so that, and how do we tailor it? How do we work for a final setting up of a project? So over to Dr. Best. If you could let us know more about the domains of entrepreneurship. Thank you, Dr. Palit, and good evening, viewers. If you remember and recollect when we ended the last program, if you recollect, we have been talking about the various opportunities available to us. You see, when you talk of an enterprise, and that too a rural setup, it means what? You see, it's unlike any other big industry. A rural enterprise, one very important part is it is a very small in nature, very small and tiny enterprise, and you have to have unless you are guided, you are oriented, and you are very clear in your mind that what are the opportunities available to me to start an enterprise, you will be thoroughly confused. So if you recollect, last time we have given an idea, and there can be many more what we may talk here. As you recollect, we may talk something which is people, and it's just an idea. You know, if you have an idea,
You can start and you can think and then you can elaborate on it, and it becomes a very big business venture. It means what? One is an idea, and another you have to have you have to make a need-based assessment. You have to literally identify the requirement of the people in the area wherever you are located. Now there are certain you have to, if you look at the entire rural setup, then you should start an enterprise which is raw material, the manpower, the other facilities required are available in the localized resources. If you go for enterprise which is of a very highly large financial needs, highly technical, resources are not available to you, then of course you will fail miserably. So the first thing that you should have to have an idea, or you must start an enterprise which is localized and where the manpower, the skilled or unskilled, the resources, raw material or in terms of any other resources are available, and then your knowledge, basically your interest, that suits the. If you have all three things put together, then I am sure that your enterprise will be a successful. Now, if you recollect what we said last time, that unless you see, government is also trying to encourage the educated youth available, especially the manpower, in terms of educated youth who are not gainfully employed at their rural setup, and they are trying to move to urban centers. Now, if you are moving to urban center for your gain, like personal gain or some good job opportunities and enhancing your personal capabilities and capacities, then yes, you must. But if you are going to urban centers and not getting gainful employment, living a very hardship of life, then definitely you should think of doing something at your own, at your native place, and generate not only for employment for yourself, but to large number of your friends and other local skilled and unskilled people. Now, if you look at Dr. Palit, you see there is a policy of the Government of India that they are basically, the government is also trying to orienting people, youth, that what all they should, rather, what are the opportunities available to them. And through Khadi and Village Industry Board and state level, there are number of programs, number of orientation programs. So, if you attend those programs, if you keep your eyes and ears open, and if you participate in that, you will get a fairly good idea and confidence so that you can go ahead with your projects. This is one. Dr. Best, I would, here I would just make it a point, like, you see, when you are talking about entrepreneurship, you are basically trying to talk about, fill in the gap. There is a gap, and this gap needs to be filled up, if you are talking about real entrepreneurship. Now, the gap is always there in a society. There could be products. There is a pencil, but this pencil has, it is perfect, but it has still some certain limitations. Now, if we can improve upon it, that would work. So, for a student, you have to think in what way you can make a product that is useful in the society. No, that is true. Now what basically I wanted to inform our viewers, that you must have some knowledge of policy guidelines, and then that will help you in going ahead with your projects. Yeah, if you have a fairly good idea about the policy of the government and what all assistance, what all help you are getting, then only you can go ahead in your project in a very comfortable way. Yes, that is there. What you need to do is, I agree with Dr. Best that initial information you should know, delineate the areas. Well, this is the area where I am interested. Let me tell you, जब हमारे जो
युवक है गांव में और जो इस तरीके की अपने जिनकी इच्छा है एक अच्छा एंटरप्राइज और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ कोशिश करने की, उन लोगों को ये माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए, बिकॉज जो हमारा यूथ है उसके पास इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस होता नहीं है कि वो बार बार इसको शिफ्ट करता रहे। अगर उसने एक स्टार्ट किया, उसी लिए वो जो हमारे यूथ है वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास कम रिसोर्सेज है, उसी में उनको एंटरप्राइज खड़ा करना है। उस रिसोर्स को अगर हम लगा देते हैं और वो काम नहीं करता है, देन यू फेल एंड देन यू रूइन योर लाइफ। यस, ओके, so we don't want that. For that reason we should be well prepared before we launch a product. Yes, so that is the idea, that is what मैं इसीलिए इस बात को जोर देकर कहने वाला था और कह रहा था कि इस तरीके से अगर हमारे यूथ को, हमारे उस व्यक्ति को जो गांव के परिप्रेक्ष्य में अपना एक उद्योग धंधा छोटा हो या बड़ा हो, किसी नेचर का भी हो, जो उसको टेस्ट का हो, उसको शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज और जनरल गाइडलाइंस, फाइनेंशियल हेल्प, टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल व्हाटएवर, वो उनको जानकारी होना जरूरी है, जिससे कि वो जिस काम पे वो अपना मेहनत, पैसा और दिमाग और समय लगाने वाले हैं वो उनका बर्बाद न जाए, उसमें पीछे हटने का उनको नहीं होना चाहिए। दे शुड मूव फॉरवर्ड। और वो जो बिजनेस वेंचर उन्होंने शुरू किया है, दैट शुड बी प्रॉफिट मेकिंग इन टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देयर ओन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर ओन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एंड देन उनके जो साथी और जो गांव के और लोग हैं, जो रूरल फोक्स है, जिसको कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, पहला बात। उसके बाद आती है कि वो क्या करें। अब जब हम ये कहते हैं कि हम क्या बिजनेस करें, क्या एंटरप्राइज शुरू करें, तो सबसे पहली बात आपको ये दिमाग में रखिए कि जो हमारे पास आमतौर से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमको वहीं से शुरू करना है। उसके लिए आप ये देखें कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी व्यवस्था है, सबसे जो हमारा जो फूड है, ये कहिए कि करीब हमारी 75% जनसंख्या गांव में रहती है, करीब 7 लाख हमारे गांव है हमारे देश के अंदर, और हम लोग हर एक का जो है कहीं ना कहीं गांव से रिश्ता नाता है। तो बेसिकली हमारी रूट्स सब गांव में हैं और हमको उस काम को गांव में शुरू करना चाहिए, जिसमें हम बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से अपने काम को कर सकें, और जो हमारे को रिसोर्सेज की, खास करके नेचुरल रिसोर्सेज की या ह्यूमन रिसोर्स की जो वो प्रॉब्लम हमको कम से कम फेस करनी पड़े, चाहे वो स्किल हो या अनस्किल हो। इसमें मैं सबसे अच्छा सुझाव अपने छात्रों को ये दूंगा कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो कि आजकल आप देखेंगे कि आपका जो चिप्स है, आलू का चिप्स है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मल्टीनेशनल कंपनीज आपके मार्केट में डाल रही हैं, बेसिकली देखा जाए तो वो कहां पैदा हो रहा है? वो हमारे गांव में, शहर में तो कुछ पैदा होता नहीं है। अब आलू लगा लीजिए, क्या आलू शहर में पैदा होता है? या वेजिटेबल्स लगा लीजिए, या फ्रूट्स लगा लीजिए, एनीथिंग जो भी आप मार्केट में, आज आप मल्टीनेशनल कंपनी ने एक नया कल्चरल मार्केटिंग का सेट कर दिया है, जो उनके थ्रू आपका चाहे वो बिग एप्पल है या रिलायंस फ्रेश है और कोई भी बहुत सारी जो हमारे मार्केटिंग आउटलेट है, सुभिक्षा है, ये सब जो आपके प्रोडक्ट कहां से आ रहे हैं? वो गांव से आ रहे हैं। तो उनकी एक अपनी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू ये चल रहे हैं। नो, मैं तो यहां तक कहूंगा अपने युवकों को कि जो ये प्रोडक्ट आपके मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, चाहे वो सुभिक्षा में हो या बिग एप्पल में हो या रिलायंस फ्रेश में हो या आने वाले फील्ड फ्रेश में हो, तो वो कहां से आ रहा है? वो एक एंटरप्राइज विलेज लेवल पे सेटअप किया जा सकता है। वो जो उसकी पैकिंग, जो उसका फ्रेश मटेरियल, इनफैक्ट जो मल्टीनेशनल कंपनी ने एक नया अपॉर्चुनिटीज खोल दी हमारे युवकों के लिए, उनके रोजगार के नया आयाम खोला है कि हमारे फील्ड से ही ये पैक होकर के और सीधे मार्केट में आ रहा है। तो ये अपने आप में एक नया व्यापार है, नई अपॉर्चुनिटीज है, जो उसमें कि हमारे जो पढ़े लिखे युवक जिनके पास कुछ समझ है, सोच है और कुछ करने की इच्छा रखते हैं, वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमारे बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला जो है हमारे है कि डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं। अब आप ये देखिए कि फ्रूट्स तो आपको पता है कि जो आपके फल हैं या सब्जियां हैं, वो 24 महीने तो या 12 महीने हमेशा तो अवेलेबल होती नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल कराई जाती है मार्केट में। वो कहां से आती हैं? वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है जिसको कि हम डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। और जिन क्षेत्रों में जिस चीज की बहुलता में पैदा की जाती है, सपोज करिए हिमाचल में सेब हैं, कश्मीर में सेब हैं, और अन्य इलाकों में जहां वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वहां के युवक उन खास करके उसी प्रोडक्ट्स में आगे आकर के उसको एज ए कैरियर
पहले स्मॉल लेवल पे, फिर लार्ज स्केल लेवल पे, कम फाइनेंस से, फिर धीरे धीरे ज्यादा फाइनेंस से अपने सक्सेस के हिसाब से कर सकते हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मौका देती है। दूसरा हम आते हैं, आपने देखा होगा मशरूम्स। नो, जैसे मैंने ये देखा है, आपने भी देखा होगा, आप एग्री करेंगे कि हमारा एक समाज में एक बदलाव सा आ रहा है। लोग नॉनवेज को छोड़ रहे हैं और वेजिटेरियन की तरफ मोड़ है। ठीक है, अब नाउ एक मशरूम, जो पहले ये कहा जाता था कि एक एलीट क्लास का फूड है, उसको सब लोग नहीं खाते, बड़े बड़े लोग खाते हैं, दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मशरूम की मार्केट बढ़ गई है। मशरूम की आप देखें, एक इंटरनेशनल मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट में भी आप लोकल में देखें तो यू गट टू कैटेगरी ऑफ इसके कस्टमर्स हैं। एक आप होटल इंडस्ट्री देखिए, रेस्टोरेंट देखिए, और एक डोमेस्टिक मार्केट देखिए। नो, आपको एक छोटा सा पैकेट मार्केट में 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए का मिलता है। इट मीन्स इट इज मेड अवेलेबल, ये कहीं ना कहीं पैदा किया जाता है। और हमारा देश इतना बड़ा है, इतना कंज्यूमर के सेगमेंट्स हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर मशरूम में भी आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह अपने आप में एक चैलेंजिंग है, एंड इट हैज गॉट अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल। बहुत ही इसका अच्छा संभावना है कि आप मशरूम के इसके अंदर अच्छा एक कैरियर बना सकते हैं। इसमें थोड़ा साइंटिफिक है, इसमें मशरूम में आने से पहले आपको थोड़ा मशरूम की क्वालिटी, मशरूम की केयर, उसके जो सीडलिंग्स हैं, उसकी जो खाद है, इसके बारे में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और एक बार आपने इस तरीके की ट्रेनिंग और इस तरीके का नॉलेज अगर आपको हो गया और आप इसमें कॉन्फिडेंट हो गए, तो यू विल फाइंड दिस इज द बेस्ट बिजनेस अवेलेबल। दो, इसके अलावा आप जो पोटैटो प्रोडक्ट्स की मैंने बात की पहले, कि पोटैटो प्रोडक्ट्स कितने कंफर्टेबल, कितने आसान। एक पोटैटो आपका एक पैकेट चिप्स बना देता है, जो कि 10 रुपए में बिकता है, 15 रुपए में बिकता है। उसके डिफरेंट टेस्ट एंड सॉल्ट्स डाल देते हैं। वो क्या है? अब आप लगाइए कि एक पोटैटो आपका 10 रुपए में बिक रहा है। क्या हमारा यूथ, क्या हम इस लाइन में नहीं सोच सकते हैं? यस, 10 रुपए का जो एक पैकेट आप मार्केट में लेते हैं, उसका एक पर्टिकुलर क्लाइंटेल है, उसके लिए कुछ खास खरीदार हैं, लेकिन हर एक आदमी तो उसको नहीं खरीद सकता। नो, अगर आप अपनी मार्केट को, टारगेट को, खास करके जो मार्केट सेगमेंट है, उसको अगर आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके से, मुझे नहीं लगता कि किसी मोड़ पे आपको ये महसूस होगा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश का जो कस्टमर है, वो वेरीड काइंड ऑफ कस्टमर है, और हर एक की नीड, हर एक आदमी आलू का चिप्स खाना चाहता है, लेकिन वो 10 रुपए की नहीं खा सकता। नाउ इट मीन्स देयर इज अ टारगेट, देयर इज अ मार्केट सेगमेंट अवेलेबल। तो आप उसके लिए इस तरीके के प्रोडक्ट्स को इसमें जा सकते हैं, और एक अच्छा हमारे युवकों के लिए एक बिजनेस वेंचर है। इसमें प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसमें जरूरत है तो एक स्किल की, एक मॉनिटरिंग की, एक पर्टिकुलर एक तरीके से काम करने और कराने की। एक इसमें इंटरवेंशन करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मैं, जैसा फूड प्रोसेसिंग का आपने बहुत अच्छा बताया एक एरिया, क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉमन नीड ऑफ द पीपल। बट बिफोर द फूड प्रोसेसिंग we can also think the area in the agriculture, particularly the cash crop area, जैसे आपने मशरूम का बताया, उसी तरह से वेजिटेबल्स या एप्पल्स या डिफरेंट फ्रूट्स के हो सकते हैं। और बिकॉज दीज इश्यूज हैज नॉट गिवन मच अटेंशन, ये हो तो रहे हैं, ये प्रोडक्शन हो रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, लेकिन साइंटिफिक मेथड से नहीं हो रहे हैं, वो टेक्निकल नॉलेज का यूज करके नहीं हो रहा है, और प्रोडक्शन बहुत कम है। तो उस एरिया में भी अगर कैश क्रॉप को बढ़ाया जाए और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जाए और टेक्निकल नॉलेज के ट्रेनिंग लेकर, आई थिंक दिस इज द बेसिक थिंग। इट अगेन हेल्प द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एज वेल एज द एग्रीकल्चर. So my concern is not only to look one area, we should also look the basic conventional agricultural practice, how to strengthen the issues. You see, taking potato, just potato into consideration, you see, getting potato has been there. We know potato has been there, it is selling. You know, youth can become good entrepreneurs if they produce better potatoes. That's one scope for entrepreneurship. There is opportunity to produce whatever potatoes are there, we can still produce better potatoes.
Better in the sense of taste, better in the sense of quantity, better in the sense of cost, better in the sense of requirement of resources. You know, with the minimum we can have the best product. That is one form of entrepreneurship. Primary product, you know. You just... The other thing which Dr. Best was saying was value addition. You see, from potato you can go for potato chips, you can go for aloo-dum, you can go for various other things if you want to process it. Okay. Now, in this processing of potato, as you were saying, we can think about different clients. आप देखे होंगे हाटों में ठेला पे आलू चिप्स भरे हुए लेके जा रहे हैं, मोटा मोटा थोड़ा होता है मगर वो खराब नहीं लगता है, हाँ वो सस्ता होता है, मगर उसके लिए भी लोग हैं जो खाना चाहते हैं और वो इतना खराब भी नहीं होता है. अगर आप वैसा चीज बना सकते हैं, एक चीज होगा सस्ता होना चाहिए, दूसरा होगा कि इट शुड बी हाइजीनिक, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, इट शुड बी पैकेज्ड. बहुत बेहतर हैवी एक्सपेंसिव पैकेजिंग नहीं होना चाहिए, बट सिंपल पैकेजिंग जिसमें कि ये मक्खी नहीं बैठ सकते हैं, डस्ट नहीं गिर सकता है. इफ दैट यू कैन डू, दैट इटसेल्फ वुड बी एंटरप्रेन्योरशिप. यस, आप देखेंगे आज की तारीख में इतना जो पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत ही एडवांस हो गया है. आप कुछ खरीद के ले आइए, एक पेंसिल खरीद के ले आइए, एक टूथब्रश खरीद के ले आइए, उसका पैकेजिंग आप खोलने में कितना मशक्कत करना पड़ता है. नाउ ये जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है इतना एडवांस हो चुका है और जो उसकी जो मशीनरी है इट्स नॉट वेरी हाई कॉस्ट मतलब कॉस्ट इफेक्टिव. Dr. West, it has levels. When you are treating for different clienteles, you have क्योंकि जब पैकेजिंग बेहतर पैकेजिंग करेंगे मशीनरी एक्सपेंसिव हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा. सो यू हैव टू थिंक ऑफ विच क्लाइंट आप किसके लिए बना रहे हैं. ठीक है, अगर आप जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको पैकेजिंग क्यों देंगे, उस पैसा को आप डालिए खाने में. जो प्रोडक्ट है, जो आलू चिप्स है, वो अच्छा होना चाहिए, पैकेजिंग बेहतर नहीं चाहिए. ठीक है, अगर आप फाइनर आलू चिप्स बनाना चाहते हैं, बेहतर टेस्ट, बेहतर पैकेजिंग, उसके लिए आप जितना घी डालोगे उतना अच्छा होगा, जितना मशीन्स में पैसा डालोगे उतना अच्छा होगा. सो डिपेंडिंग ऑन योर रिसोर्सेज you can go for finer and finer products. नो, उसमें सर दो बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम ये जो अभी बातचीत कर रहे हैं वो हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए कर रहे हैं जो कि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं और जो ये दिल रूप से चाहते हैं कि वो अपने उसी नेटिव प्लेस में ही क्या बेस्ट कर सकते हैं, गेनफुली एम्प्लॉय रह करके, और औरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट की कोई जनरेशन कर सकें. जैसे डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि कैश क्रॉप का जोर दिया जाना चाहिए, वो तो खैर है ही है, उसमें दो राय नहीं है कि वो जब अच्छी तरह क्रॉप नहीं होगी तो कहां से ये प्रोडक्शन होगी और कैसे वो उस प्रोडक्ट को आगे उसको इंडस्ट्री में यूज कर सकेंगे. तो कैश क्रॉप की बात है, हम पूरी तरह सहमत है आपसे कि कैश क्रॉप का बारे में सोचना, उसको इस तरीके से प्रोडक्शन करना कि ये क्वालिटी जो क्रॉप पैदा हो, और क्वालिटी क्रॉप पैदा होगी तो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो आपकी फसलें होंगी, जो आपका से मशरूम होगा या पोटैटो होगा या कोकोनट होगा या फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, वो हाई क्वालिटी के होंगे और आपको अच्छी रिटर्न उनको देंगे. एक तो वो है, वो एक अपने आप में एक अलग एरिया है. ये हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिन लोगों के पास अच्छी जमीन है, जमीन में पानी की जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, खाद की व्यवस्था है, और वो डेफिनेटली एक अच्छा किसान है वो. लेकिन हम किसान के बाद की बात कर रहे हैं जिन लोगों के पास अच्छी जमीन नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और वो कुछ करना चाहते हैं और वो वहीं रहकर कुछ करना चाहते हैं, तो वहां से पैदावार. अब ये लगाइए कि आपका जो एक से वेजिटेबल है या फ्रूट्स है जो आपका हिमाचल में पैदा होकर के दिल्ली में किसी इंडस्ट्री में वो उसका पैकेजिंग हो रहा है, उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा. लेकिन अगर हिमाचल में रह के हिमाचल के किसी लोकल गांव में वो प्रोसेसिंग हो रहा है और पैकेज होके आ रहा है तो डेफिनेटली कॉस्ट कम हो जाएगी. हाँ,
तो यही मेरा कहना है. I cannot disagree with you at all because this is what we want. Yes, But what I'm trying to say is that when you keep the rural youth in mind, when you talk about the rural youth, largely most of them do not have much resources at their disposal, even experience at their disposal, okay, of going about an enterprise. So what he or she should think is that he should produce a product which is possible for him to handle. You know, handle in the sense that he has that kind of resources to make it, he has that kind of skills to make it, he can engage people who can make it, and he should be able to market it also. Yes. Marketing, for instance, to market a product, a rural products which is in Belgium, for instance, cut glass. It's something very, very labor intensive product, but that is very, very expensive. That is world over it has a demand, but it's something you can't. Marketing it is a very inexpensive proposition also. We don't mean to, push the student towards thinking of making things, making impossible things a reality. We are just trying to make him think of something which is realistic, something which he is capable of doing. First make a dent, first become an entrepreneur at whatever level it is possible for you. You become an entrepreneur, then in that line, once you gain experience, you can innovate. You can further innovate to produce better and better things. And the more innovation you put in, the more you will be sustaining yourself as an entrepreneur. You would never cease to be an entrepreneur, but when you cease to innovate, then you cease to become an entrepreneur. So your purpose should start from a very small scale. I would not say that you have to start at very small scale. You start at a small scale because your resources permit you to start at a small scale only. If you have that kind of resources, if you are a very big landlord's son or a daughter, you can start on a bigger scale, but you ought to have experience as well. You see, just not pumping in money is enough, but you have to realize that it works. Finally, you are able to see to it that the enterprise is successful. So, I hope you understand. I understand, sir. मैं आपकी बात समझ चुका हूँ और मैं इसके साथ साथ जो हमने थोड़ा सा बात में थोड़ा चेंज आया था कि कैश क्रॉप और क्वालिटी एंड वेरियस थिंग्स, उसके साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ने की बात कहूँगा कि जो हम बता रहे थे, जो हमारे युवक हैं जिनको कि ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं किस बिजनेस में या किस कार्य में हाथ डालूं ताकि उसको सफलता मिले. तो जब मैंने कहा था कि आप पोटैटो है ना, एक हमारे सदर्न स्टेट में नारियल है ना, नारियल आप देखें तो नारियल का पूरा पेड़, उसका पत्ता, लकड़ी और नारियल का जो प्रोडक्ट होता है, छिलका और सब कुछ काम आता है. नाउ इट्स अ बिग इंडस्ट्री. कोकोनट इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री. ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, युगों से चला आ रहा है, लेकिन इनोवेशन, क्रिएटिविटी और जो जब आप कुछ नया कुछ करने की सोचते हैं तो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स. अब आप नारियल की बात करें तो नारियल के पत्तों से झाड़ू बनता है, नारियल के जूट से मैट बनती है, नारियल को हम खाते हैं, नारियल को जब तोड़ा जाता है तो उसकी लकड़ी से भी कुछ यूज होती है. नो पॉइंट इज कि इन द होल प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ दिस कोकोनट ट्री एंड कोकोनट द प्रोडक्ट, वट एवर यू द वेरियस बाय प्रोडक्ट, उसमें जो हमारे यूथ हैं, खास करके जो सदर्न स्टेट में जो कि नारियल की खेती में इन्वॉल्व हैं, नारियल के प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स उनको इजीली अवेलेबल हैं, तो दिस इज वन वेरी बिग एरिया. ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है, एरिया है जहां पे कि वो कुछ कर सकते हैं और कुछ किया जा सकता है. एक चीज आपको बताऊं मैं, ये आप क्या देख रहे हैं? पेंसिल है. ये पेंसिल हम सब देख रहे हैं, इट आर मेड ऑफ वुड. रिसेंटली आई सॉ अ पेंसिल which is also made of wood, but वो wood है नीम का wood. Yes. बच्चे लोग
पेंसिल को चबाते हैं, पेंसिल में काम करते हैं, चबाते चबाते हैं, रहते हैं। वो चबाते चबाते a lot of color, a lot of things which are not toxic would not be going into their mouth. What they have done is they have नीम की पेंसिल बनाए, ताकि जो चबाए तो कोई प्रॉब्लम। चबाए तो So that is what is needed now. That is what is needed. useful. Yeah. You see, this is what is called Yes. innovation. Innovation. Now उसके अलावा जब आगे जाते हैं, so you have so many other things like मसाले। मसाले अपने आप में इज अ वेरी बिग एरिया, वेरी बिग एरिया। नाउ उसमें आप गार्लिक कहिए, मस्टर्ड ऑयल कहिए, मस्टर्ड पाउडर कहिए, पिकल्स कहिए, ये सब चीजें उसमें आती हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण इसी चीज का देता हूं कि उत्तराखंड के अंदर आमतौर से एक मार्केट है जो बहुत बड़ी दूर है, और वहां से कोई एक आदमी या किसी एक ब्रांड कंपनी के प्रोडक्ट्स वहां मार्केट में आते हैं, उसको इंटरमीडिएटरीज मार्केट में लॉन्च करते हैं, और फिर उनको जो चीज एक पर्टिकुलर एक खास कीमत पे मिलती है, कम से कम दुगनी और नहीं तो दुगनी कीमत में जाके कस्टमर को अवेलेबल हो पाती है। किसी एक व्यक्ति ने इस तरीके का आइडिया लगाया कि हम बाहर से लाते हैं और मसाले हमारे यहाँ, उन्होंने खेती को इनकरेज किया, मसालों की खेती को, और उनको वहीं खरीदा, मसाले की चक्की बनाई और लोगों को सामने पीस करके बिल्कुल ताजे और बहुत अच्छी क्वालिटी के शुद्ध मसाले अपने ब्रांड नेम के तहत बेचना शुरू किया। तो पहले तो लोगों को लगा कि ये कहाँ चलेगा, बिकॉज वहां से तो आते हैं और ये नहीं चल पाएगा। लेकिन जो क्वालिटी उन्होंने दी और जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उन्होंने किसानों का, उन लोगों का किया जो कि मसाले उगाने में उन्होंने नया एक वेंचर शुरू किया, और स्लोली 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 अब ये पाया गया कि उनके ब्रांड और मसाले उसी लेवल पे पहुंच गए जो कि किसी समय बाहर से आयात किए जाते थे वहां पे। नो, एक अपने आप में उदाहरण है कि उनके मसाले पूरे इलाके में ऐसे चल पड़े हैं कि लोग अब उन मसालों को भूल गए और इन्हीं का पसंद करते हैं। इनके जो मसाले हैं वो कोई नई चीज नहीं है, वही है, हो सकता है बेटर हो, क्योंकि लोगों को पता है कि वहां पैदा होता है, वहां से वहां गया, इसमें कोई मिलावट नहीं है, और वो सामने बनता है और फिर मार्केट में आ जाता है। तो इस तरीके की जो मसाले इंडस्ट्री के अंदर हो, या मस्टर्ड ऑयल लगा लीजिए, आजकल आप मस्टर्ड ऑयल में ये मिलावट मसाले का के कितना बारे हो? में मैं जस्ट आई वांट टू इंटरवीन। मसाला जो आप कह रहे हैं कि कोई मसाला शुरू किया एंड वो ही बिकेम सक्सेस, it's true that if you start something, producing something in front of people Yes. and in a limited number, and people start recognizing the product, it would compete with people which may be a better product, in the Yes. sense a packaged product. The difference The is, brand name. the difference is, why is the packaged product is more, could not compete? Reason is, since it's packaged, it had to be expensive. Since it is coming from far off place, it has to be transported. So, if you can produce something which is needed in the local area, what the advantage that you have is of unnecessary expenditures of packaging, transport, etc. But एक लेवल के बाद तब अगर आप सोचेंगे नहीं में हम लोग भी इसको बाहर लेके जाएंगे, तब आपका प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के साथ बराबर होना चाहिए। मैं मसाला के बारे में बहुत बताना चाहता हूं, प्रिसाइजली बिकॉज मसाला एक चीज लगता है, इट्स आम चीज है, उसको आप कूट के बना सकते हो, इट्स वेरी इजी टू मेक मसाला। बट आप जब कूटते हैं तब क्या होता है, आई थिंक आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, अब कूटते हैं तब क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जो फ्रिक्शन जब होता है तब मसाला गर्म हो जाता है, और वो मसाला जब गर्म हो जाता है उसका फ्लेवर कम हो जाता है। सो उस कूटने को हम क्या करते हैं कि जितना लो टेम्परेचर में उसको पीसा जाएगा वो उतना बेहतर उसका फ्लेवर आएगा। सो ये लो टेम्परेचर में ग्राइंडिंग जो होता है, उसको जब हम डिसाइड करते हैं कि लो टेम्परेचर में ग्राइंडिंग, तब हम मशीन लेना पड़ता है वो जिसको कि इट इज नॉट फ्यू लैक्स बट क्वाइट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि अब अगर आप रूरल सेटअप में देखें, अब इंडस्ट्री लगा रहे हैं, अगर आपने एक वही मशीन जो कहीं बड़े पैसे से लोन लेकर के आप लगवा दी और मसाले का टेस्ट जो आप बना रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आप उसको मार्केट में दें, तो वो तो वही दे दिया आपने जो आ रहा था। लेकिन अगर आपने अपने लोकल सेटअप से लोकल लोगों को, जो अनस्किल्ड लोग हैं, Yes. उनको यूज किया,
उनको बजाय उसके जो आपने कहा कि एक कूल लो टेम्परेचर पे ग्राइंडिंग, चाहे आपने हाथ से कुटवाया या वो जो भी टूल आप लोकलाइज यूज कर सकते हैं वो मेथड यूज किए, और आपने जो मसाला है, जो भी आप प्रोडक्ट है, खास करके उसका जो मेन फ्लेवर है, अपने उसको बरकरार रख करके आपने लोकल मार्केट में सप्लाई कर दिया, तो यू आर विन ओवर, यू आर ए विनर, एंड आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर जीत कर ली जो कि आपको बाहर से आ रहा था। एग्जैक्टली वो आपको वहां पे आपको क्या करना है, आपको कौन सा क्लाइंट के लिए, कौन सा टारगेट ग्रुप के लिए आप बना रहे हैं जिसको फ्लेवर में इतना फर्क इतना चलेगा। आई मीन वो उनको चाहिए अच्छी चीज और सस्ती चीज, वहां पे आप उस क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। अगर आप चाहेंगे कि आगे बहुत अच्छे लोगों के, बहुत अमीर लोगों के लिए बनाएंगे जिनको कि वो बहुत ही फ्लेवर के बारे में दे आर fussy about it, they want to have the best of products, then you have to invest, you have to think of innovations. So you have to very careful while going ahead with the project, for whom are you making it. नहीं, वो आपकी बात से सहमत हैं हम, लेकिन मैं अपने उन छात्रों को ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि उनका एक प्रोजेक्ट है कि मैं मसाला इंडस्ट्री में मैंने जाना है ना, वो मसाला इंडस्ट्री में या मसाले के अंदर उनको व्यापार करना है, तो उसके लिए मैं अपने युवकों को, अपने विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि आप इस चीज से न घबराएं कि एक खास मल्टीनेशनल कंपनी का एक प्रोडक्ट बहुत सुंदर पैक में आता है और वो वहां पे मार्केट में लोग, वो आजकल जो मार्केट बहुत इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि आपको 1 रुपए में भी चीज दी जा रही है, और 1 रुपए में वही चीज दी जा रही है जो कि आप कभी सोचे थे कि नहीं ये तो हमारे बस का नहीं है, ये तो हमारे पहुंच से बाहर है, वो आपको 1 रुपए में बहुत तरीके से मार्केटिंग टूल को यूज करते हुए आपको अवेलेबल कराई जा रही है। नो, अल्टीमेटली मैं आप छात्रों से यही कहना चाहूंगा कि आप इससे कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको, अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में श्योर हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में विशेष करके अगर श्योर हैं, तो यू विल बी द विनर। पैकेजिंग, यस, इट डज मेक अ डिफरेंस, बट अगर आप अपने लोकल एरिया को, लोकल नीड्स को भी अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोकल रिसोर्सेज को, लोकल मैन पावर को यूज करते हुए लोकल नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये आप कई उदाहरण हैं, अगर आप इन चीजों को कोई खास प्रोडक्ट स्पेसिफिक या एरिया स्पेसिफिक स्टडीज करना चाहें, तो आपको कई मिलेंगे इस तरीके के प्रोडक्ट जहां की लोग बाहर की चीज को रिजेक्ट कर दिया है। Yes, that is there. No, I am not, you see, Bisab, I am not favoring the multinationals. What I am trying to say is, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो बनने जा रहे हैं रूरल एरियाज में, they need to be realistic. I am not saying that the opportunities are not there. There are plenty of opportunities. But कौन सा opportunity है आपके लिए, वो आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। अभी मैं उसमें एक थोड़ा सा आपको ऐड करके और उसमें थोड़ा सा भिन्नता लाऊंगा विषय में। आप ये लिख लीजिए, पापड़ एक इंडस्ट्री है, पापड़ सारी दुनिया खाती है, और इट्स प्लेंटी ऑफ ब्रांड भी पापड़ मिलते हैं और लोकलाइज पापड़ मिलते हैं। नो, अगर आप देखें, यस, जो मशीन से बना हुआ वेरी फाइन पापड़ है वो भी, और जो आप गांव में लोग अपने हाथ से बनाते हैं, या आप देखिए पापड़ तो थोड़ा मशीन मेड होता है, आप वो देखिए जो हाथ से लोग मसल के बहुत सुंदर सुंदर नमकीन्स ये बनाते हैं, आप उनको खा करके देखिए। आप साउथ इंडिया के प्रोडक्ट, नहीं, वो तो दूसरा बात की आपने दूसरा बात की है, जो कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप क्यों है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम जो कुछ पसंद करते हैं वो लेबर इंटेंसिव होता है। कैसे बताऊं कि आप जो कपड़ा पहनते हैं, द मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स आर हैंडलूम प्रोडक्ट्स। द हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर लेबर इंटेंसिव। जो खाना जब खाते हैं आप, इवन इफ यू एट होम ऑल्सो you make for 2 or 3 people or 5 people, 6 people, the food is delicious. But once you start making food for 100 people, then the food, the quality, you cannot maintain that kind of quality. So, वो तो पेंटिंग भी आप एक बनाए तो अच्छा बने, उसी आदमी से 10 बनाओगे तो you would not get that kind of quality. So that is the advantage of labor intensive products. There the rural youths can always have an advantage over the multinationals or machine. But
in case a student is, once you get an experience into it, once you are into it, there are other things which follows. You have to sustain yourself, you engage a lot of people, you have to look after their welfare, you have to, cannot remunerate the way you have been remunerating right from the beginning. You have to increase their salaries. So then you have to go expand yourself. मैं इसमें आपकी बात से सहमति जताते हुए यही कहूंगा कि जब हम गांव के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और खास करके जो रूरल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि पहली बात आप दो फायदे कर रहे हैं। एक तो अपना, कि आपने अपने आप के लिए एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट सोचा, एक अच्छा बिजनेस सोचा। दूसरा कि आपने वहां के लोकल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज यूज किया, प्रोडक्ट्स को। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अपने साथ, अपने गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के साथ अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, रोजगार दिया, जो कि लोग बेरोजगार थे, महिलाएं, बच्चे। क्योंकि देखो गांव के अंदर एजुकेशन का स्तर, हम कुछ भी कहें आज की तारीख में, फिर भी हम लोग शहर की तरफ दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि शहर में शायद अच्छा है, शहर में अच्छा है। और शहर में आकर के एक, जिसको मैं ये कहूंगा कि अर्बनाइजेशन सिंड्रोम नाम दिया जाता है, कि लोग शहर के पीछे पागल हो रखे हैं और शहर की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जब शहर में आ जाते हैं तो फिर वो कुछ, उनको खास जिस उम्मीद से वो शहर की तरफ भागे हैं वो हाथ नहीं लग पाता है। आप परसेंटेज वर्कआउट कर लें तो बहुत कम लोगों को, एक काफी मैं तो कहूंगा कि 10 से 15-20% लोग ही सेटिस्फाइड हैं। आप सर्वे करेंगे तो आपको पाएगा कि लोग दे आर नॉट वेरी हैप्पी। इनफैक्ट आज की बात बताऊं, मैं आज किसी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था जो कि आसाम से दिल्ली आया हुआ है और उसको 1 साल हो गया है। एंड दैट स्टूडेंट इज वेरी क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा है। केवल मैंने उनसे कहा कि आप दिल्ली क्यों आए आसाम से, क्या वहां पे जॉब नहीं थी, क्या इतनी सैलरी? कहते नहीं, जितनी सैलरी हमें दिल्ली में मिल रही उतनी वहां मिलती थी, हमने सोचा दिल्ली में कुछ ज्यादा मिलेगा। तो वो कहने लगे नहीं, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ कैसे आ गए। लेकिन फिर भी वो आशा लगा के बैठे हुए हैं कि शायद हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। ये एक सिंड्रोम है, एक अर्बनाइजेशन सिंड्रोम है। तो मैं अपने युवकों से यही कहूंगा कि आप इस सिंड्रोम के ग्रसित ना हो और इस अपने जो रूरल सेटअप के अंदर रहने के लिए, या रूरल एंटरप्राइज करने के लिए, या रूरल सेटअप में कुछ अच्छा करने के लिए मन बनाएं। और मुझे आशा जरूर होगी कि अभी हम आने वाले समय के, अभी जो हमारी टाइम हो रहा है, तो हम आने वाले नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर आगे बात करेंगे। और डेफिनेटली आप लोगों को इतना आत्मविश्वास होगा कि नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगा। और उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो गए थे और वहां पे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो दैट विल गिव यू मोटिवेशन कि यस, वी मस्ट डू एंड वी विल डू इट। We'll carry on with this discussion in the next session, and I have a complaint against our students that they have not kept us, they have not asked us any question, and we've been repeating that we need questions so that we do not know whether you're following our lectures or talks or discussion, and what more we can explain you. For that purpose, we need to have queries from you. Please do ask us some questions. Hope you will ask us some questions in the next session.